Good morning, students. So, beta, today we are going to attempt the next problem from the sheet, which also has appeared in the board examination. And children, it is also a very basic problem. So, first look at a problem. See that what is asked, that write a program to input a string and to print the count of alphabets, digits, and symbols in that string. Mean children, we have to input a word or a chain of characters, and finally we have to find out that how many alphabets are there, digits and symbol. For example, here see that one vehicle number is entered, UP32CJ5467. Okay, and your output will be in this situation, alphabets are 4, digits are 6, and symbols are 2. Okay children, so in this way we have to print the result. So now children, see that this problem can be tried using various approaches. Okay, and children, I will tell you the answer of this program using three methods. Okay, so now look at the first approach that we can follow. In this answer, children, see what is we are going to do. That children, we will attempt the problem with the help of ASCII code. Okay, you know that I have told you in the last class also that what do we mean by ASCII codes, and again I repeat the table of that. And I have told you also that you have to remember this table. So I told you that for capital A to Z, we have the ASCII codes from 65 to 90. Small a to Z, we have the ASCII codes from 97 to 122. And then finally for the digits 0 to 9, ASCII codes are 48 to 57. Okay, and now I take you to the program. So children, when we will start with the program, look at the first line, enter a sentence, and then we will take the input of a string. Okay, so suppose that if I entered, I am taking the same example, UP32, then a dash, then CJ, then dash, and 5467. Okay, suppose children, I entered this string. Okay, and that value will be stored into a variable that is str. First I mark the index of its characters. Okay children, so after marking the character of this string, what do I find? That the length of this string is length 12. Okay, so all the characters are stored from index number 0 to 11. Okay, after that look at the next line. What am I saying? That integer a equal to 0, d equal to 0, sy equal to 0. So children, I am taking here three counters, a, d, and sy. Okay, these are the three counter children to count the alphabets, digits, and symbol. A will take care of alphabet, d for digits, and sy for symbols. Okay children, after initializing all these three variables, then see that two more counters are used, x for executing the loop and cd for storing the ASCII code of the character, and then we have one more variable char ch. Okay children, this variable will extract the characters from this string, okay, which you entered. After that, move to the program. Children, in this loop children, we are performing all the jobs. So now look at this. I am running a loop from 0 to less than str.length. So all of you know that the length of the string is 12. So the loop will run from 0 to 11. First time the value of x is 0. Okay, so come inside ch equal to str.char@x. ch में हमने क्या किया, अपनी जो स्ट्रिंग है उसके जीरोथ इंडेक्स से एक कैरेक्टर फेच कर लिया. ठीक है, तो देखिए क्या निकल के आ गया, कैपिटल यू निकल के आ गया. After that children, look at the next line. In the next line children, it is told cd equal to intch. यानी बेटा हम लोग ch पे क्या कर रहे हैं, टाइप कास्ट ऑपरेटर हमने अप्लाई किया. ch में कैसी वैल्यू है, कैरेक्टर, और हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करके cd में स्टोर कर दिया. तो बेटा आप सबको पता है
कि जो CD में क्या होगा कि इस कैपिटल U को जब आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो देन दिस वैल्यू विल बी कन्वर्टेड टू इट्स एक्विवेलेंट और कॉरेस्पॉन्डिंग ASCII कोड. ओके, तो you know that when you will calculate you will find that the ASCII code of capital U is 85. Okay, so the value which will be stored in CD that will be 85. तो ये देखिए हमने क्या किया बेटा, हमने दो काम किए. हमने करंट इंडेक्स का फेच किया कैरेक्टर और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके CD में स्टोर कर दिया. ठीक है, अब हम लोग इस टेबल की हेल्प लेंगे. ठीक है ना, इस टेबल से अब हमें पता है कि अगर वो कैरेक्टर है बेटा, अल्फ़ाबेट है, तो वो 65 टू 90 या 97 टू 122 की रेंज में होगा. तो अगर आपका एसआई कोड 65 से 90 या 97 टू 122 में है तो वो एक अल्फ़ाबेट है, हम ए की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे. इन द सेम वे इफ़ द equivalent ASCII code is in range of 48 to 57, it means कि that is a digit and we will increase the value of D. और अगर इन तीनों में से किसी भी रेंज में नहीं है, व्हाट इट मीन्स कि ना वो अल्फ़ाबेट है ना वो डिजिट है, तो फिर क्या होगा, कोई सिंबल होगा. ठीक है, तो अब आगे बढ़िए. और देखिए मैंने अगली लाइन में क्या कहा, मैंने बेटा चेक किया इफ़ CD इज ग्रेटर देन 65 एंड CD इज लेस देन इक्वल टू 90. ठीक है, ये पहली कंडीशन है टू चेक इफ द गिवन कैरेक्टर इज अ कैपिटल लेटर और नॉट. और सेकंड कंडीशन क्या है, इफ CD इज 97 एंड CD इज लेस देन इक्वल टू 122. तो ये क्या चेक करेगा, इफ द गिवन कैरेक्टर इज इन लोअर केस. और बेटा दोनों के बीच में साइन कौन सा लगा हुआ है, और, यानी कि ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, यानी कैपिटल हो या स्मॉल लेटर हो. तो आपको पता है कि दैट द फर्स्ट condition will be true for our this program. Okay, for example CD 6 is greater than 65 and CD is less than equal to 90. तो मेरी वैल्यू कितनी आई है, 85 कैपिटल U के लिए. तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, 85 इज ग्रेटर देन 65 एंड इट इज़ ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 90. तो क्या होगा इस बार बेटा, A प्लस प्लस, मेरे A वाले काउंटर की वैल्यू बढ़ जाएगी. व्हाट इट मीन्स कि ये जो कैपिटल U आपने निकाला था ये क्या है, आपका एक अल्फ़ाबेट है. ठीक है, और फिर ये वाला एल्स और ये वाला एल्स चलेगा नहीं, और यहीं से कंट्रोल मेरा ऊपर मूव कर जाएगा, x प्लस प्लस. नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 1. अंदर आइए, CH इक्वल टू str.caret1. अब CH में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, P आ जाएगी. ठीक है, कैपिटल P. यहाँ देखिए इंडेक्स नंबर 1 पे कैपिटल P स्टोर है. ठीक है, आगे बढ़िए, CD इक्वल टू INTCH. अच्छा यहीं पे ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है इस लाइन में हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वी आर कन्वर्टिंग अ कैरेक्टर CH इनटू इट्स एक्विवेलेंट इंटीजर एंड फॉर दैट चिल्ड्रन वी आर मेकिंग यूज ऑफ टाइप कास्ट ऑपरेटर. बट एक्चुअली देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग दिस. ठीक है, क्यों नहीं नीड है, क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि क्या है कि जो कैरेक्टर है इसका साइज़ बता 2 बाइट है और जो CD इंटीजर है इसका साइज 4 बाइट है. तो आपको पता है ना, यहाँ पे ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग हो जाएगी, ऑटोमेटिक टाइप का कन्वर्जन होगा, दैट इज़ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन. तो ये वैल्यू बिना टाइप कास्ट ऑपरेटर के भी इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है. तो बेटा आपकी बार कैपिटल P है, इसको जैसे ही आप इंटीजर में स्टोर करोगे तो ये अपने एक्विवेलेंट ASCII कोड दैट इज़ 80 में कन्वर्ट हो जाएगा. अब आप आगे बढ़िए, फिर से चेक करिए, 80 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड 80 इज लेस देन इक्वल टू 90. ओके, तो यानी ये कैपिटल लेटर की रेंज में फॉल हो रहा है. तो अगेन A प्लस प्लस, वैल्यू ऑफ A विल इंक्रीज. ठीक, इसके बाद फिर और आगे चलिए, x प्लस प्लस, द वैल्यू ऑफ x विल बिकम 2. 2 पे क्या निकल के आएगा बेटा, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक डिजिट है 3. ठीक है, बट ये 3 किस फॉर्म में आपने फेच किया है, कैरेक्टर फॉर्म में. ध्यान रखिए न्यूमरिक फॉर्म में नहीं, क्योंकि इसको आपने कहाँ से फेच किया है, एक स्ट्रिंग से फेच किया है. एंड द method we used it was caret, so you know that it extracts the character from a string. Okay, so this 3 will be within the single quote, we can assume it like this. And again, when you will convert this character 3 into equivalent integer, so you know that the ASCII code of 3 will be 51. Okay, so the value of CD will be 51. And now we will check for value 51 all the conditions. So now let's see, if 51 is greater than equal to 65, no, so this condition is wrong. If CD is greater than equal to 97, no, second condition is also wrong. तो बेटा ऐसा क्या मतलब हुआ कि ये अल्फ़ाबेट तो नहीं है.
तो नाउ द कंट्रोल विल मूव टू द एल्स पार्ट. एल्स में क्या चेक हुआ है? इफ सी डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 48, यस 51 इज ग्रेटर देन 48 एंड 51 इज लेस देन इक्वल टू 57 ऑल्सो. तो अब की बार बेटा आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है. और अब की बार क्या होगा? डी प्लस प्लस, यानी कि ये जो अब की बार आपने फेच किया है कैरेक्टर, दैट इज अ डिजिट. ठीक. फिर आगे चलिए, एक्स प्लस प्लस. एक्स की वैल्यू अब बढ़ के हो जाएगी 3. 3 पे क्या निकल के आएगा बेटा? 2 निकल के आएगा. और 2 का जो एस्काई कोड है, इसको जब आप सी डी में स्टोर करोगे, दैट विल बी टर्न टू 50. ओके. एंड अगेन यू नो दैट फॉर द 50 ऑल्सो चिल्ड्रन द सेकेंड कंडीशन विल बी ट्रू, मीन्स इट फॉल्स बिटवीन 48 टू 57, सो वैल्यू ऑफ डी विल इंक्रीज. ओके. देन अगेन मूव अप, एक्स प्लस प्लस. एक्स की वैल्यू 4 हो गई और 4 पे देखिए क्या निकल के आएगा? डैश निकल के आ गया, ठीक है ना. अब इसका क्या है एस्काई कोड? हमको भी नहीं पता, एज्यूम 40 आ गया, ठीक है. क्योंकि देखिए हमें लेटर्स और डिजिट्स के तो एस्काई कोड पता है, लेकिन सिंबल्स तो बेटा बहुत सारे हैं, उनकी टेबल याद करना टफ है. पर हमें इतना समझ में आना चाहिए कि इन सब के अलावा 65 टू 90 एंड 97 टू 122 एंड 48 टू 57, इस रेंज के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या करते हैं? अलग अलग सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. तो डैश का हमने एज्यूम कर लिया, कितना आ गया? 40 आ गया. अब जरा 40 के लिए चेक करिए, क्या ये 65 टू 90 के रेंज में है? नो. 97 टू 122? नो. 48 टू 57 की रेंज में है? नो. तो जो सेकंड वाली कंडीशन है ये भी फॉल्स हो जाएगी, फर्स्ट वाली भी, दोनों फॉल्स हो जाएंगी. व्हाट इट मीन्स कि ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये डिजिट भी नहीं है. तो अब आपको पता है कि जब ना अल्फ़ाबेट है ना डिजिट है, तो कंट्रोल कहाँ जाएगा? थर्ड वाले एल्स पे. और हम क्या करेंगे? सिंबल प्लस प्लस. हम लोग बेटा इस बार सिंबल की वैल्यू बढ़ा देंगे, यानी कि ये कोई एक सिंबल है, ठीक है ना. तो ऐसे बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा. मैंने 0 से लेके 4 तक चेक कर लिया, तो इसमें आपने क्या देखा? अल्फ़ाबेट्स भी आए हैं, डिजिट्स भी आए हैं और सिंबल्स भी आए हैं. अब तक देखिए मैंने यहाँ पे 5 चेक किए हैं लेटर्स, 0 से लेके 4 तक. 2 बार बेटा ए की वैल्यू बढ़ी है यानी अल्फ़ाबेट, 2 बार डी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, मीन्स दीज वर द डिजिट्स, और एक बार एस वाई यानी सिंबल की वैल्यू बढ़ी है, ठीक है. और इन द सेम वे बेटा ये प्रोसेस, फिर एक्स प्लस प्लस ऊपर जाओगे आप और अब की बार 5 वाला निकालोगे. 5 पे क्या आ जाएगा? कैपिटल सी आ जाएगा, ठीक है. और कैपिटल सी का कितना होता है स्काई कोड? 67. तो 67 के लिए फिर से वही आप जानते हो ए की वैल्यू बढ़ेगी, और ऐसी बेटा ये प्रोसेस चलती जाएगी. फिर 6 पे जाओगे तो कैपिटल जे 74, तो फिर से ए की वैल्यू बढ़ जाएगी. 7 पे डैश सिंबल की वैल्यू, फिर 5 4 6 7, एंड यू नो ऑल ऑफ दीज आर द डिजिट्स. तो यानी कि 4 टाइम डी की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है. तो ऐसे बेटा पूरा लूप आपका चल के 11 तक जाएगा और फिर ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा. और when the loop terminates and your control will come out from the if children, then we are finally we will print all the values on the screen. Like here we are printing alphabets are a, so the count of a will print, that is 4. Then we will print the count of digits, that is d. d की 6 आ जाएगी. एंड सिम्बल्स, ठीक है. सिम्बल्स यहाँ पे 2 आए हैं, एक बार इंडेक्स नंबर 4 पे और एक बार इंडेक्स 7 पे. तो ऐसे बेटा मेरी ये सारी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी. तो ये बेटा ये फर्स्ट अप्रोच है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एस्काई कोड्स. ओके चिल्ड्रन. आफ्टर दैट आई टेक यू टू इट्स सेकेंड अप्रोच. Okay, children. So now look at the second sheet for this answer. Okay, children. If it is the second approach, children, in this I am not going to make use of the ASCII code. Why, children? Because I want to tell you few things. For example, if I somewhere if I write char ch equal to capital A. So as I told before also, for children, for us it is looking like we are storing the capital A into ch, but children actually I have told you that the compiler does not work on characters. Okay now, it assumes all the characters as a number only. So actually what happens is that when you try to store the capital A into ch, then ch stores its equivalent ASCII code within this variable. Okay, so the value of ch is actually 65. One more thing I want to tell you children that while writing the programs in Java, you can treat the character variables as the number also. Okay, what it means कि we can
add this variable, we can subtract these variable. Okay, all these operations can be performed. Okay, so it is a very basic thing which we must know. So actually what happens, children, ki that when I'm saying ki we can treat the character variables as number, so then while writing the answer of this program, in this approach, children, we are not going to convert these characters into their equivalent ASCII code. Okay, what it means ki we will directly compare these numbers. Okay, sorry, we can directly compare these character variables. Okay, how? Now look at the answer. Okay, so children, the same situation is here. Enter a sentence. तो मैं यहाँ पे एक यूज़र से स्ट्रिंग की एंट्री ले लेता हूँ और वही सेम एंट्री ले लेते हैं हम लोग, यूपी 5467 और अब इसकी हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लेते हैं. ओके, तो आपको पता है पूरा इसके बारे में कि ये मैंने एक स्ट्रिंग इनपुट कर लिया 0 से लेके 11 तक और ये वैल्यू कहाँ स्टोर है, STR में. और इसके बाद फिर मेरे पास देखिए वही 3 काउंटर हैं, A है, D है और SY है. ठीक, इसके बाद फिर यहाँ पे X है यानी काउंटर है मेरा लूप एग्जीक्यूट करने के लिए, और कैर CH टू एक्सट्रैक्ट द इंडिविजुअल कैरेक्टर. अब आ जाइए अंदर. मैंने कहा फॉर x इक्वल टू 0 CH इक्वल टू STR डॉट कैरेट एक्स. तो CH में बेटा मैंने कैरेट एक्स यानी कैरेट 0 फेच कर लिया. आपको पता है कैपिटल U निकल के आ जाएगा. ठीक है ना. अब अगली लाइन देखिए बहुत ध्यान से. ठीक है, बस यही हमें सीखना है. जो चेंज हुआ है लास्ट प्रोग्राम से वो इसी लाइन में चेंज हुआ है. मैंने कहा इफ़ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल जेड. तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है हम लोग के लिए. कैसे कि हम लोग डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं. सी एच में क्या स्टोर है बेटा इस समय, जैसे कैपिटल यू स्टोर है. यानी क्या मीनिंग हुई इस लाइन की, इफ़ कैपिटल यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए एंड सी एच मीन्स कैपिटल यू इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड. तो हम लोगों को ये सरप्राइजिंग लगता है कि क्या हम कैरेक्टर्स को ऐसे डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं. बट बेटा यही मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि फॉर अस चिल्ड्रन इट इज़ कैपिटल यू एंड कैपिटल ए, क्योंकि ये हमने यहाँ पे टाइप किया है. बट फॉर कंपाइलर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कंपाइलर तो कैपिटल यू एंड कैपिटल ए समझता ही नहीं है. वो जब इस लाइन को जब रीड करेगा तो वो क्या रीड करेगा, कैपिटल यू आपके लिए है, कंपाइलर के लिए क्या है बेटा, वो एक नंबर है. ठीक है, कौन सा नंबर है, 85. तो यानी वो क्या रीड करेगा इसको, 85. कैपिटल ए को क्या रीड करेगा, 65. ठीक है, कैपिटल जेड को क्या रीड करने वाला है, वो 90 और कैपिटल यू को 85. ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आओगे तो सी एच का मतलब होगा इसके लिए 85, कैपिटल और फिर है स्मॉल ए 97, स्मॉल जेड 122 एंड सी एच स्टैंड फॉर 85. यानी कि अब ये लाइन जब कंपाइलर रीड करेगा तो कैसे रीड करेगा कि इफ़ 85 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 65 एंड सी एच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड, यानी कि 85 इज लेस देन इक्वल टू 90. ठीक है, तो अपने आप ही आप समझ जाएंगे कि 85 65 से ग्रेटर भी है एंड 85 इज लेस देन इक्वल टू 90 भी है. तो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन है दैट विल बी ट्रू. ठीक है, और क्या होगा, a प्लस प्लस जो a की वैल्यू है दैट विल बी इंक्रीज बाई 1. ठीक है, फिर इसके बाद लूप ऊपर जाएगा, x प्लस प्लस एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी एच में कैपिटल P निकल के आएगा. ठीक है, वही सेम थिंग बेटा कैपिटल P के साथ भी होगी, कैपिटल P. ठीक है, चेक करेगा इफ़ सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल ए, पर अब की बात सी एच में कैपिटल P है. ठीक है, तो कैपिटल P इसके लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे 80 बन जाएगा. जहाँ जहाँ पे भी आपने सी एच लिखा है वो उसको क्या समझेगा, 80 समझेगा. ठीक है, कि इफ़ 80 इज ग्रेटर देन 65 एंड 80 इज लेस देन 90, यस वैल्यू ऑफ ए विल इंक्रीज बाई 1. ठीक है, ऐसे ही जब अगली बार जाओगे तो कैरेट 2 निकालोगे, कैरेट 2 पे क्या आएगा, 3 आएगा. ठीक है ना. तो इज 3 का जो एसकाई कोड है कितना है, मैंने बताया था आपको 51. ठीक है, तो ये यहाँ पे चेक करेगा इफ 51 इज ग्रेटर देन 0, तो 0 का एसकाई कोड 48 है और 9 का 57 है. ठीक है, तो ये यहाँ अब की बार देखिए फर्स्ट कंडीशन तो फॉल्स होगी. कैसे कि सी एच यानी कि 51 इज नाइदर ग्रेटर देन 65 नॉर इट इज लेस देन 90 एंड द सेम सीन इज हियर ऑल्सो. ठीक है, कि आपको पता है कि 48 97 से ग्रेटर भी नहीं है, 48
सॉरी 51 जो है 97 से ग्रेटर भी नहीं है और 122 से कम भी नहीं है, यानी फर्स्ट कंडीशन विल बी रॉन्ग. सो कंट्रोल विल मूव टू द सेकंड कंडीशन, दैट इज इफ सी एच इज ग्रेटर देन जीरो. तो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि वो सी एच को यानी कि जीरो को अपने आप ही 51 में कन्वर्ट कर लेगा, और ये जो जीरो आप देख रहे हो सिंगल कोट में, दैट विल बी कन्वर्टेड टू 48. क्यों? क्योंकि जो आपका कंपाइलर है वो तो कैरेक्टर समझता ही नहीं है, तो बेटा वो अपने आप ही उनको कॉरेस्पॉन्डिंग स्काई कोड में कन्वर्ट कर लेता है. ठीक है, तो यानी कि चिल्ड्रन वी कैन डायरेक्टली कंपेयर द कैरेक्टर्स. ओके, देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट them into their equivalent ASCII code as we were doing in the previous program. ठीक है, तो या ये जो अप्रोच है ये थोड़ी सी सिंपलर है. ठीक है, इन कंपेरिजन ऑफ द प्रीवियस अप्रोच. तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी अटेम्प्ट कर सकते हो. ठीक है, कि इन कि जो है आप इनको पहले इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एसकाई में कन्वर्ट करो, फिर ऐसे करो, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो दिस अप्रोच कैन बी ऑल्सो यूज. ओके चिल्ड्रन, तो मेरा ख्याल है कि आई होप कि यू हैव गॉट द लॉजिक ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑल्सो. इन द सेम वे चिल्ड्रन इट विल फेच ऑल द कैरेक्टर, और ऐसे ही ए की वैल्यू 6, डी की सॉरी ए की 4 है, डी की 6 है और सिंबल की 2 आ जाएगी, एंड फाइनली you will print all the answers. Okay children, so it was our second approach, and children when I will meet you in the next class I will explain you one more approach for solving this problem. Okay, in that children we will make use of the character handling methods. Me children, we are having few library classes, and by using those library method we can make this program more easier. Okay, and we will learn it in the next class. Thank you.